اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے سارے دوست خیریت سے ہوں گے۔ جی ایک پارک میں بیٹھا ہوں، گرمی سے پریشان۔ میں نہیں پریشان، لوگوں کو دیکھ رہا ہوں گرمی سے کا تدارک کے لیے ذرا پارکوں کی طرف جاتے ہیں، پھر کچھ وقت وہاں گزارتے ہیں تاکہ تھوڑا سا تازہ ہوا ان کے پھیپھڑوں میں جائے۔ آج کا موضوع میں نے سوچا کہ تھوڑا سا ایک تو جسمانی صحت پہ تو ہم اکثر گفتگو کرتے رہتے ہیں، تھوڑا سا روحانی صحت کی طرف بھی تھوڑی سی گفتگو کریں۔ بہت دن ہو گئے اس کے اوپر کوئی کلام نہیں کر سکے، تو کچھ چیزیں میرے ذہن میں تھیں، میں نے تھوڑا سا آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے۔ ہم نے دیکھا کہ جوں ہم کرونا کے بعد کے دور میں جوں جتنا آگے جاتے جا رہے ہیں تو ہم اپنے آپ سے اتنا دور ہونے پہ مجبور ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم اپنی تہذیب سے دور ہوتے جا رہے ہیں، ہم اپنی روایتوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں، ہم اپنے کلچر سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہونے پہ مجبور ہو رہے ہیں تھوڑی چیزیں، اور ہم اپنی عادات سے دور ہوتے جا رہے ہیں، خصلتوں سے، سب چیزوں سے ہم دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اس کے اوپر میں بڑے دنوں سے غور کر رہا تھا کیا ایسا کیا جائے کہ ہم لوگ اپنی روحانی اقدار سے تو کم سے کم جڑے رہیں۔ چلیے معاشرتی قدریں تو تبدیل ہوتی رہتی ہیں وقت کے ساتھ، تھوڑا سا بدلنا بھی چاہیے۔ اس حوالے سے میں اکثر دوستوں کو کہتا ہوں کہ جو لوگ اپنے پرانے ادوار کے ساتھ چپکے ہوئے ہیں نا ذہنی طور پہ، تو میں نے اکثر دیکھتا ہوں آرکائیو کے اندر پرانی تصویریں نظر آتی ہیں، اور بڑے بڑے خوانین اور بڑے بڑے چودھریوں کی کوئی اتنی اچھی لائف نہیں تھی ان کے زمانے کی تصویروں کی وجہ سے۔ میں ان کی زندگی کا نہیں کہتا، لیکن ان کے آس پاس جو بکھری ہوئی جو بے بسی اور بے کسی نظر آتی ہے۔ ایک کسی گرینڈ جرگے کی تصویر میں نے دیکھی، گرینڈ جرگہ کیا تھا، پتھروں میں بیٹھے ہوئے تھے بیچارے، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ زمانہ تھا جس میں نالیوں کا کانسیپٹ نہیں تھا، زمینوں کا کانسیپٹ نہیں تھا۔ انگریز آیا، ٹھیک ہے، اس کے بڑے نقصانات ہوئے، بڑے عظیم نقصانات ہوئے کہ اس کے خلاف پھر جہاد کرنا پڑا، لیکن ان کے کچھ فوائد ہوئے۔ ان میں فوائد یہ تھے کہ جو علاقائی طور پہ قوانین اور جو علاقائی طور پہ جو لوگ راجے مہاراجے اور جو حکمران قسم کے لوگ تھے، ان کے ظلم سے بھی تو نکلنے میں مدد ملی لوگوں کو۔ تو اسی طریقے سے پرانی، ٹھیک ہے، پرانی قدروں کے چپکنا نہیں چاہیے، پرانی قدروں سے بہت کچھ سیکھنا چاہیے۔ اگر وہ اچھی ہیں تو ان کو یاد کرنا چاہیے، اس پہ فخر بھی کرنا چاہیے۔ اس کے بدلے میں اگر آپ کی روحانی قدریں قائم رہتی ہیں تو اپنی بالکل ظاہری اور باقی قدروں سے، معاشرتی قدروں سے اگر نکلنا بھی پڑ جائے بالکل نکلنا چاہیے۔ روحانی قدریں ہماری کیا تبدیل ہو رہی ہیں، تیزی سے ہوس بڑھ رہی ہے، چونکہ کم وقت کے لیے موقع مل رہا ہے رزق کمانے کا۔ تو آپ کو پتہ ہے خالی پیٹ شیطان کی اماجگاہ مان جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ بھرا پیٹ آپ نے سنا ہوگا کہ بھرا پیٹ شیطانیت کی اماجگاہ، اس ٹائپ کی کوئی مشہور بات بھی ہے۔ لیکن میرا ماننا یہ خالی پیٹ مستقل جس کا رہتا ہے نا، پھر اس سے یہ سارے کذب ہوتے ہیں، یہ سارے گناہ ہوتے ہیں۔ تو کسی کی میں سن رہا تھا اقوال زری، کہیں پڑھ رہا تھا، بچپن میں بڑے اقوال زری میں نے جمع کیے ہوئے تھے، تو اس میں تھا کہ مفلسی سب سے بڑا گناہ ہے، کیونکہ وہ جنم دیتی ہے تمام گناہوں کو۔ یہ بڑا ایک چھوٹا سا جملہ تھا، لیکن مجھے بڑا غور کرنے کا موقع ملا۔ جب غور کیا تو بڑے میرے اندر ایک تبدیلی لے کر آیا کہ بھائی باقی یہ تو مفلسی تھی، وہ سارے بڑے بڑے گناہوں کی بنیاد ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ جب آپ مفلسی کے ہاتھوں، غربت کے ہاتھوں، بھوک کے ہاتھوں ایسا قذب کر بیٹھتے ہیں جس سے آپ کے ضمیر پہ بوجھ ہو، اس بوجھ کا اثر آپ کی نفسیات پہ ہوتا ہے، روح پہ نہیں ہوتا ہے، اس کا اثر آپ کی نفسیات پہ ہوتا ہے۔ اس نفسیاتی بوجھ کے اندر رہتے ہوئے بندہ اپنی روح سے دور ہونا شروع کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ جسمانی عوارضات جمع جسمانی ضروریات کا پورا نہ ہونے سے اس کا اثر جب نفسیات پہ پڑتا ہے، نفسیاتی ذہن پہ پڑتا ہے، تو ذہن اس میں ایسے تذبذب کا شکار ہوتا ہے، ایسے کشمکش میں پھنستا ہے کہ اسی میں الجھنے کی وجہ سے وہ اپنی روح سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں عذاب دورہ، ٹھیک ہے۔ تو میں اس میں یہ کہوں گا کہ کوشش کیجیے کہ جو کچھ مرضی ہو، آپ کے کچن کا نظام بس چلتا رہنا چاہیے، اس کے اندر
किचन का निज़ाम चलता रहता ना, बंदा कुछ रिलैक्स रहता है कि चलो कुछ नहीं, जो भी है, बच्चों का 1 साल ज़ाया हो रहा है पढ़ाई में, कोई बात नहीं, बच्चों की सेहत अच्छी है, ज़िंदगी ज़रूरी है, ऐसे ही होता है ना। तो इसी तरीके से जब आप मुख्तलिफ़ किस्म के और उमूर में फंस जाते हैं, वही जैसे मतलब खाना पीना, ये पूरा नहीं होगा तो क्या होगा, बंदा छीनेगा, झपटेगा, चोरी करेगा, डाका डालेगा, हो सकता कत्ल भी करे, अपने बच्चों का पेट भरेगा या अपना पेट भरेगा, उसको भरना ही भरना है। तो अब क्या होगा कि जब आपका पेट भर गया तो आपके अंदर से ये मसाइल ख़त्म हो गए। लेकिन अगर पेट भर गया और वो बहुत ज़्यादा भर गया और फालतू भरा रहा तो क्या होगा, फिर भी जराइम जन्म देंगे, फिर खौफनाक जराइम जन्म देंगे। और वो जितने जराइम होते हैं वो भी रूहानी जराइम कहलाते हैं। वो रूहानी लोगों की ज़िंदगियों पर गौर करें, जहाँ उनको लगा कि बीच में थोड़ा सा बड़ी गड़बड़ होने वाली है तो उन्होंने एकदम बड़ी बड़ी बादशाहतें छोड़ दिया। इब्राहिम बिन आदम को आप देख लें, जहाँ उनको अंदाज़ा हुआ कि ये ओहदा उनको रूहानी जराइम की तरफ ले जा सकता है, उन्होंने फ़ौरन अपना छोड़ दिया, अपना ओहदा छोड़ दिया। ठीक है, तो इसी तरीके से जब हमारा जब पेट खाली है तो हमारे जुर्म की नीयत कुछ और होगी, वो जिस्मानी जुर्म आएंगे, उसके ऊपर अल्लाह मियाँ शायद माफ़ कर दें, ये मुमकिन है। लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि जब आपका पेट भरा हुआ हो, आपने लोगों का पेट काट के अपना पेट भर लिया और अपने पास ज़ख़ीरा कर लिया, और उसके बाद आपसे जो कुछ सरज़द होगा वो रूहानी जराइम कहलाएंगे। और रूहानी जराइम जब सरज़द होंगे तो रूहानी जराइम में क्या होता है, ठीक है, लोग नबूवत का दावा कर बैठते हैं, खुदाई का दावा कर बैठते हैं, रऊन बन जाते हैं, फ़िरौन, आमान, शद्दाद, पता नहीं कितने कारून वगैरह के नाम आप देख लें। इन लोगों ने क्या कुछ किया दुनिया में, अल्लाह ने इनको किस नाम से याद किया, फसाद करने वाले। ठीक है, तो बस इन दोनों के दरमियान तवाज़ुन के हवाले से सोच के चलें कि कैसे चलना है, आपने कैसे चलना है। और आपके चलने की वजह से आपका बच्चा लर्न करेगा, वो सीखेगा कि इससे हमने कैसे गुजरना है। तो देख लें आप क्या कुछ उनको सिखा सकते हैं, तो उसके ऊपर गौर करना शुरू कीजिए। वो हरकतें, वो अमाल, वो चीज़ें जो हमें हमारी रूह से दूर करती हैं, हमारी रूहानी इक़्तिदार से दूर करती हैं, अल्लाह और अल्लाह के रसूल से दूर करती हैं, उसके ख़िलाफ़ तदारक तो करना है ना, किसी ने तो करना है। तो ठीक है, घर के अंदर अगर आप बैठे हुए हैं, स्कूल नहीं जा रहे बच्चे, तो आप उनको कुरान पाक की तालीम देना शुरू करें, अल्लाह रसूल की बातें ज़्यादा करें, उनको उनके वाक़यात सुनाइए और थोड़ा सा उनको तवक्कुल सिखाएँ। ठीक है, उनको थोड़ा सा खाली पेट रहना भी सिखाएं, उनको थोड़ा सा भरे पेट कंट्रोल करना भी सिखाएं कि कैसे कंट्रोल हो। उनको थोड़ी सी जिस्मानी तरबियत भी करें, उनको जिस्मानी हरकत में भी रखें, साथ में रूहानी तरबियत भी करें, रूहानी हरकत में भी रखें। रूहानी हरकत में कुरान पाक की तलावत है, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, जिहाद तो है, साथ में अखलाकी तरबियत भी है कि जी आज चलो जी गुस्सा नहीं करना है, आज किसी को जवाब नहीं देना है, आज थोड़ी देर खामोश रहना है, खामोश रहने का रोज़ा रखना है, थोड़ा सा या हय्यो या कय्यूम, चलो जी देखते हैं कौन ज़्यादा मर्तबा पड़ता है, ये अल्लाह का कोई भी नाम, या थोड़ा सा ऊंची आवाज़ में जिक्र करवा दें। ठीक है, बच्चों की कानों के ज़रिए समात में जाएगा, जो समात में जाता है वो याद रहता है, वो जाके ब्रेन के अंदर स्टॉर्मिंग करेगा, ब्रेन बम्बार्टमेंट शुरू होगी, तो उससे क्या होगा, आपका पॉजिटिव सेल्स आपके चार्ज होंगे, जो अल्लाह मियाँ और अल्लाह मियाँ किसी के कुर्ब की यादाश्त को हमेशा उस बच्चे के अंदर ज़िंदा रखेंगे, और वो बच्चा कम से कम अपनी रूहानी कदरों के करीब रहेगा। ठीक है, तो बस मैं ख़ास तौर पर रूहानी तालिब इल्मों के लिए और अपने दोस्तों को जो मुझसे मुंसलिक है ख़ास तौर पर, उनको यही कहूँगा कि भाई अपने जिस्मानी मामलात की वजह से, अगर आप जिस्मानी मामलात के पूरे ना होने की वजह से अगर आप रूहानी मामलात में सुस्ती कर रहे हैं, तो भाई अपने जिस्मानी मामलात पूरे करें। उनके अंदर अगर कोई ऐसी कमी बेशी हो रही है, सुस्ती की वजह से हो रही है, तो भाई सुस्ती ना करें। अगर कोई हल निकालने की ज़रूरत है, किसी एक्सपर्ट से राय लें, दुआ करवाएं, जो भी तरीका आपका है, तो उन चीज़ों को पूरा करें। अपने ख़ास तौर पर रिस्क के मसाइल जो हैं उनको पूरा करें, बस हवस ना करें। रिस्क पूरा होना चाहिए, उसके अंदर हवस नहीं होना चाहिए। बाकी ज़्यादा वक्त इन्हीं चीज़ों में नहीं गुजारना चाहिए, अपने इरादों और अपने ख़ानदान की सोचों में बहक नहीं रहना चाहिए। ये गौर करना चाहिए हमें अल्लाह तबारक व तआला ने क्यों पैदा किया, हम इस दुनिया में क्या करने आए हैं, हर बंदा क्यों मर जाता है और फिर कहाँ चला जाता है। जहाँ वो जाता है वही उसकी असल ज़िंदगी है, उसके बाद पता नहीं कितनी दुनियाओं में उसने ज़िंदगी गुजारनी है। ठीक है, जब 15 मिनट हो तो मुझे बताना कितने मिनट हैं। 9 मिनट 9 मिनट 2 मिनट, ठीक है। तो अब देखें, होता ये है कि आम ज़िंदगी के अंदर हमें कोई ये बताता ही नहीं है
रूहानी कदरें भी कुछ चीज़ है, रूहानी अमाल और अमूर भी कुछ चीज़ है भाई। मरने के बाद की भी कुछ ज़िंदगी है। जब जिस चीज़ के बारे में मालूमात नहीं होती ना, उस तरफ बंदा तजस्सुस नहीं करता। जब तजस्सुस नहीं होता उसके बारे में वो जानता नहीं है। जब वो जानता नहीं है तो वो कहता वो चीज़ है ही नहीं, तो लाइल रह जाता है। देखिए ना, हमारे यहाँ झोला ने क्या किया, हमारे यहाँ जहाँ पे अनपढ़ माहौल है, उनको अभी भी आप बोलें कि ये वायरस है तो वो कहते हैं वायरस नहीं होता जी। या उनको बोलें कि जैसे ये कोरोना चल रहा था, या उनको बोलें कि जी दुनिया चांद पे चली गई, कहते हैं कि नहीं गई, या जा सकती है, नहीं नहीं। ठीक है, अभी भी देखना, क्योंकि उनके इल्म में नहीं है ना। उनके इल्म में वो है जो उनके इल्म में है, बस वो उसी के ऊपर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो उसको इल्म नहीं कहते। तो जानना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जानना, अगर आप किसी के बारे में, अगर आप किसी को किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी इल्म के बारे में आगाही दे देते हैं ना, आपका काम ख़त्म है। आप अगर बता देते हैं कि भाई मरने से पहले हम कहीं थे और मरने के बाद उसी जगह पे हम जाएंगे, तो ये एक आगाही है कि ठीक है, एक ऐसा जोन है जहाँ से हम आए और फिर वहीं हम लौट जाएंगे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इसीलिए पढ़ते हैं हम लोग, जहाँ से हम लौट के आए वहीं लौट जाएंगे। तो अब उसको कम से कम ये याद रहेगा कि नहीं भाई ये जगह आर्जी है और हम कहीं से आए हैं और कहीं पे जाना है हमने। जब हमने जहाँ जाना है, अगर इसके जहन में ये बैठ गया तो यकीन कीजिए इसके जहन में ये भी आ जाएगा कि कहीं जब आप बताएंगे ना, वहाँ पे कोई पूछने वाला भी होगा भाई क्या करके आए दुनिया में, तो उसका हिसाब रखने की तरफ जाएगा और वो पॉजिटिव रहेगा बंदा। तो थोड़ी सी आगाही देने की तरफ जाएं। अपने आप को पहले आगाही दीजिए, पहले अपने आप को इस लाइक कीजिए, ऐसे लोगों के करीब रहिए, ऐसे लोगों का मवाद पढ़िए, ऐसे लोगों का मवाद देखिए। कंटेंट कहते हैं आजकल यूट्यूब की दुनिया में, ऐसे लोगों का कंटेंट देखिए। ये आर्जी जो चल रहे हैं आजकल, ढकोसलाबाजी चल रही है, इनकी तरफ इतनी तवज्जो मत दें। और बाकी भी देखें, आप इतना टाइम तो ज़ाया करते ही हैं बाकी इतने मामलात में। खाली कुकिंग रेसिपीज़ कितनी देख लेंगी ख़वातीन की, ख़ास तौर पर मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, देखनी चाहिए, क्यों नहीं देखनी चाहिए। वो कितनी देख लेंगी, एक दिन में एक खाना पकाना है, 365 दिनों में चले 365 का डबल कर लें, 700 कुछ 700-750 खाने पकाने हैं आपने। जबकि आप एक दिन में 700 कुकिंग की देख के क्या करेंगी, ठीक है। तो इसी तरीके से और कुछ ड्रामे देखेंगी या कुछ और देखेंगी। बाकी भाइयों को भी मैं कह रहा हूँ, फिल्में देखेंगे, ड्रामे देखेंगे, या लड़ाई झगड़े वाली तकरीरें सुन लेंगे, तकरार सुन लेंगे, ये वो काफर और ये मुसलमान, ये सुन लेंगे। ये भी सुनना चाहिए, लेकिन थोड़ी सी अपना वक्त उन लोगों के करीब रहने की, ज़हनी तौर पे कम से कम उनका कुर्ब अख्तियार करने की कोशिश करें, जिनका ताल्लुक़ किसी न किसी सतह पे आपको लगता है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ है, रूहानी दुनिया के साथ है, कुछ गैबी दुनिया के साथ है, कुछ जानता है वो इस बारे में कि इस दुनिया के बाद क्या होने वाला है, इस दुनिया के बाद क्या दुनिया है, इससे पहले की क्या दुनिया है, कहाँ से हम आए हैं, कहाँ जाएंगे, उसके बारे में अगर कोई गाइड कर सकता है तो उसके साथ ज़हनी तौर पर रब्त रहने से क्या होगा, आपका जहन बनेगा। जब आपका जहन बनेगा, आपके बच्चों का बनेगा, आपके मुतलकीन का, अपने के बहन भाइयों का, आपके शागिर्दों का बनेगा। तो फिर उन जब उस तरफ मुतवज्जो होंगे तो इंशाल्लाह उस तरफ आप कदम भी उठाएंगे। अल्लाह मियां ने कहा है कि जब तुम एक कदम मेरी तरफ उठाते हो तो मैं 10 कदम उठाता हूँ। जो बंदा मेरी तरफ 10 कदम बढ़ता है, मैं भागता हूँ उसकी तरफ आता हूँ, मतलब अपनी तरफ खींचने के लिए। तो आप उसकी तरफ एक कदम बढ़ाएं, ज़हनी तौर पर सोचना शुरू करें। अल्लाह मियां आपके लिए ऐसे ऐसे राज अफशा करेगा कि आप हैरान रह जाएंगे। आपको इसी दुनिया के अंदर, ये तो 3D वर्ल्ड है ना, इसी दुनिया के अंदर रहते हुए एक और नई दुनिया पैरेलल चलती हुई नजर आएगी और आप हैरान रह जाएंगे। तो ये कुछ मेरे जहन में था, मैंने कहा आप लोगों के जहन में बिल्कुल चीज़ें मैं डालूँ। सुबह सवेरे का टाइम हो, गर्मियाँ हैं आजकल, थोड़ी देर नमाज़ पढ़ के थोड़ी देर के लिए खुली फ़ज़ा में आ जाए करें, थोड़ी वॉक भी करें, ऊंची आवाज़ में जिक्र करें, ताकि आपके फेफड़ों में अच्छा ऑक्सीजन जाए। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना, कलमा पढ़ना भी अच्छा है। या हय्यो या कय्यूम पढ़ें तरन्नुम के साथ में, जैसे पढ़ता हो तो या हय्यो या कय्यूम, या हय्यो या कय्यूम, है ना। तो ऐसे ला इलाहा इल्लल्लाह, जिस तरह आपको बेहतर लगता है। या ऊंची आवाज़ में कुरान पाक की तिलावत करना, सफ़र थोड़ी सी वॉक करते हुए, ये भी एक अच्छा अमल है। थोड़ा थोड़ा पानी पीजिए, थोड़ा सा कच्ची लस्सी बना के रखें, थोड़ा सा वो पिएँ। सुबह का नाश्ता मुँह ठंडा करना और मीठा करना वो ज़्यादा बेहतर होता है, गर्मियों के हवाले से कह रहा हूँ। तो थोड़ा सा वो कर लें तो आपकी तबीयत में बड़ा अच्छा आपको महसूस होगा, आपका दिल भी लगेगा नमाज में भी, कुरान पाक में भी, नमाज में भी और ज़िक्र में भी। मुराक़बा करें, तो इन सब चीज़ों को क्या कहते हैं, मुराक़बा, ठीक है। तमाम जगहों से ज़हन को हटा के किसी एक तरफ मुतवज्जो हो जाना। और किसी एक तरफ क्या मुतवज्जो होना कि अब आप ये देखते हैं, अच्छा जी आज ये तौर करना है कि इस मरने के बाद हम कहाँ चले जाते हैं, या इस मरने से पहले हम कहाँ थे, पैदा होने से पहले हम कहाँ थे, है ना। तो पैदा होने से पहले जहाँ पे भी थे
اور مرنے کے بعد جہاں پر بھی ہم چلے جائیں گے اس کے اوپر غور کریں. جب غور کرنے کے لیے آپ بالکل محو ہو جائیں گے, مگن ہو جائیں گے تھوڑی دیر کے لیے, تو اس حالت کو کیا کہیں گے؟ جب آپ محو ہیں, سوچ رہے ہیں کوئی چیز, تو جو بھی اس بندے کو آپ کو دیکھے گا, خاص طور پہ ایکسپرٹ دیکھے گا مراقبے کا, تو وہ کہے گا کہ صاحب اس ٹائم حالت ہے مراقبہ میں. عموماً اس دوران کیا تو آنکھیں بند ہوئی تھی, ورنہ آپ آنکھیں بند کر کے اہتمام کر کے بیٹھیں, درود شریف پڑھیں صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وسلم, اور یا حی یا قیوم پڑھیں 10-11 مرتبہ پڑھ لینا ٹھیک ہوتا ہے. اس کے بعد آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں اور انہی چیزوں کو طرف ذہن کو لے کے جائیں کہ آپ مرنے کے بعد کے عالم کی طرف جا رہے ہیں, اور دیکھیں وہاں پہ کیا ہے. ٹھیک ہے, رات کو سوتے وقت یہ پریکٹس کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, چھوٹے بچے نہ کریں, آپ خود کریں کہ بھائی مرنے کے بعد کی جو عالم ہے جہاں پہ سب لوگ جاتے ہیں, اور سوتے میں بھی تو اب آدمی ادھر ہی جاتا ہے, اسی عالم میں جاتا ہے نا, تو آپ دیکھیں کہ آپ کا ذہن کہاں جا رہا ہے, مرنے کے بعد کے جس عالم میں جا رہا ہے وہ کیسے جا رہا ہے. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ میں وعدہ تو نہیں کرتا ہوں کہ میں روز کیا میں ویڈیو اپلوڈ کر سکوں گا یا آن لائن آ سکوں گا, لیکن جتنی میری ہمت ہوگی, جتنی مجھے آسانی لگے گی, انشاءاللہ میں آپ سے رابطے میں رہا کروں گا. میری دعا کرتے رہا کریں, میں آپ کی بھی دعا میں رہوں گا. مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.